वेलकम इन माय चैनल स्टडी विद ब्रेनरी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीटीबी के बारे में, जो द हिंदू न्यूज़ के बारे में, द हिंदू न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। आज हो गया 1 जून 2021 और ये फर्स्ट पेज है। ये फर्स्ट पेज जो दिए हुआ जीडीपी श्रिंकेज बाई 7.3%, क्वार्टर फोर अपटिक मॉडरेट 2020 से 2021 क्रेनेज, मतलब जो है वो क्वार्टर फोर में इंक्रीज कर सकता, मॉडरेट कर सकता। और जो इसका 7.5% का था, क्वार्टर थ्री या क्वार्टर फोर में पॉजिटिव आउटपुट आने का उम्मीद है, इसके बारे में बताया गया है। और ये बताया गया नेशनल इंडिया ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट contracted by 7.3% 2020 as per provisional national income estimate released by the National Statistical Office on Monday, marginally better than the 8% contradiction in the economy project. Earlier GDP growth in 2019-20 prior to the COVID-19 pandemic was 4%. The gross value added GAV in the ecosystem shrinkage 6.2% in 2020-2021 compared to 4.1% rise in the previous year. Only two sectors bucked the trend of the gravity GVA ग्रोथ एग्रीकल्चर। तो इसके में बताया गया कि जो थर्ड में है वो घटा तो 6.2% हुआ, प्रीवियस ईयर जो था वो 4.1% राइज बढ़ा था। और खाली सिर्फ एक दो सेक्टर इसके में बढ़ा, वो आपको ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में, विच रोज 3.6% एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस 1.9% तक बढ़ा। थ्रू दिस इज द ब्लैकेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द रिकॉर्ड फॉर द इकोनॉमी। द फोर्थ क्वार्टर Q4 of 2020 helped moderate the damage with a higher than expected growth of 1.6% in GDP. This made the second quarter of positive growth after the country entered a technical recession in the first half of the year. GDP had contracted to 20.4% in April-June 2020, followed by 7.5% shrinkage in the second quarter. It had returned to positive territory in the September to December quarter with a marginal 0.5% growth. GVA for trade, hotel, transport, communication and broadcasting related service saw the sharpest decline of 18.2%, followed by construction minus 8.6%, mining and quarrying minus 8.5% and manufacturing 7.2%. ये जो बता रहा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सब में तो ग्रोथ ठीक रहा। ये बट इस चीज़ में जो है आपको कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में, इसके में जो है ग्रोथ नहीं हुआ, इसके में डिक्रीज हुआ और -7.8%। इकोनॉमी साइड दिस नंबर वुड मॉडरेट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ 2020। इकोनॉमी जो है वो बोल रहे हैं कि इसका ग्रोथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अभी थर्ड वेव आना भी बाकी है। With a lower concentration in the GDP as well as GVA in 2020, the sharp recovery project for 2021 to 22 by a number of agencies like the IMF 12.5% and the RBI 10.5% may have been moderated, said D.K. Srivastava, Chief Policy Advisor at EY India. The combination of the second wave and the revised base effect may imply a lower GDP growth for the Indian economy for 2020-22, maybe in the range of 9.9 to 9.5%. Mr. Srivastava, Chief Economic Advisor to the Finance Minister K.V. Subramaniam, said he doesn't accept GDP forecast to be significantly affected. Whether growth will be in double digit or single digit, there is uncertainty. Some of the scientists are talking about the possibility of a third wave too. It would be speculative to tell you an exact number, he said, stressing or vaccination was important for the health of the people and economy. ये जो कह रहे हैं कि हेल्थ ऑफ पीपल के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्सीनेशन बढ़ती है तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी।
ये आपको चार्ट दिया हुआ कि कब बढ़ा कब घटा। इस तरीके से -7.3% जीडीपी आ चुकी है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट बैट फॉर वन प्राइस फॉर वैक्सीनेशन अक्रॉस नेशन। द गवर्नमेंट ऑन मंडे claimed it will be included the entire eligible population by 21 and in only to be bar ranged with question from the Supreme Court about the efficiency of its policy which allow a center to procedure just 50% of the vaccine while leaving the state to buy their own. The court also challenged the differential vaccine pricing policy, saying there need to be one price for vaccine across the nation. The virtual hearing, however, began on a positive note with Solicitor General Tushar Mehta assuring that on vaccination as per estimate from the domestic market and Sputnik V, we expected the entire eligible population to get vaccinated by the end of the year. Mr. Mehta said the government was in talk with other manufacturing like Pfizer. If the discussion succeed, the government would be able to advise its deadline for completing the immunism. He added that he would file an affidavit with the latest update. इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग हुई तो वो बोले कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी को वैक्सीनेशन से सेम प्राइस पे देना चाहिए, किसी को ज़्यादा प्राइस किसी को कम प्राइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ दिन में तुषार मेहता ने इन्होंने कोर्ट को बताया कि फाइजर से बात चल रही है, अगर वो डिस्कशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फाइजर और स्पुतनिक को भी उतारा जाएगा मार्केट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और इसका प्रोडक्शन में भी बढ़ाया जाएगा देश में डोमेस्टिक लेवल पे। अपडेट, बट द कोर्ट हाईलाइटेड द डिफरेंस इन वैक्सीन प्राइस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट व्हेन द सेंटर कैन परचेस वैक्सीन इन बल्क फॉर 150 पर डोज, द स्टेट हैव टू पे 300 to 600 रुपीज। जस्टिस एल नागाशावरा राव on the bench asked why when the two vaccine, Covaxin and Covishield were differentially priced. What is the relation for this dual pricing policy? Why is the center procuring at a lower price and why has the center fixed its vaccine purchase at 50% and left the state to their own devices? Justice Bhatt asked. Justice D.Y. Chandrachud said some state and municipal corporation had gone ahead and floated their own global tenders to buy vaccine. We want to know if the policy of the country is that all states are on their own to supply tender. He asked the center. इन्होंने बोला कि वैक्सीन जो है आप अगर सेंटर बल्क में खरीदा तो 150 रुपये, अगर स्टेट खरीद रहा तो उसको 300 से 600 रुपये। इस तरीके से नहीं होनी चाहिए और आपको जो भी है वो वन प्राइस होनी चाहिए सभी के लिए। अब इसी पेज पे आप इस पे आ जाइए। इट्स टाइम टू डिफाइन लिमिट ऑफ सेडेशन। इसका TV 5 और ABN न्यूज़ करके है, जिसपे वो सेडेशन चार्ज लगाया गया सरकार को वो रिपोर्ट करने को लेकर, जो कोविड-19 को रिपोर्ट किया गया था। हालांकि इसके पहले जस्टिस चंद्रचूड़ 30 अप्रैल को ऑलरेडी बोला गया कि अगर सरकार का कोई क्रिटिसाइज करता तो कोविड को लेकर तो उस पर सेडेशन चार्ज, उस पर कोई भी केस नहीं होना चाहिए और उससे आप सीखिए और आप मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाइए। तो उसी को लेकर ये हुआ। तो ये आइए सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे said it is a time to define the limit of the sedation even as it's protected to Telugu channel from any coercive action by the YS Jagan Mohan Reddy led Andhra Pradesh government for their reportage of the COVID-19 pandemic in the state. In 3 judges bench led by Justice D.Y. Chandrachud flagged
indiscriminate use of the sedition law against critic, journalists, social media user, activists, and citizen for arising grievance about the government COVID-19 management, or even for seeking help to gain medical access, equipment, drug and oxygen cylinder. We are of the view that the ambit and parameter of the provision of section 124A, sedition 153A and 1505 of the Indian Penal Code 1860 would require in temptation, particularly in the context of the right of the electronic and print media to communicate news and information, and right even those that may be critical of the prevailing regime in any time, any part of the nation. The court noted in its order. Muzzling the media. This is muzzling the media. Justice L. Nagaswar Rao, another judge on the bench along with Justices Ravinder Bhatt, said about the manner in which AP has tried to silence Channel TV5 and ABN. It is time to define the limit of sedition, Justice Chandrachud said. The court issued notice to the AP government and directed that there shall be a stay on the response that state adopting corrosive proceeding against the two TV channel. Justice Chandrachud pointed out that the court had categorically told the state not to initiate penal action against the critic of COVID-19 management measure in the April 30 or December. Kerala want Lakshadweep he'd recalled. अब यहाँ पे आइए आप इस पेज पे. द केरला असेंबली ऑन मंडे announcedly passed the resolution demanding the recall of the Lakshadweep administration, Cater Praful Koda Patel, and the withdrawal of the controversial order issued by him. The House also expressed solidarity with the people of Lakshadweep who have been protesting against the decision of Mr. Patel and seeking urgent steps to safeguard their culture and livelihood. The resolution is the first to be moved in the assembly after the left democratic front under the chief minister primary vision हो गया. मतलब लक्षद्वीप के लिए इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पास किया जाए. वो केरला हाई कोर्ट के. अब आइए यहाँ हाई कोर्ट पुल ऑन ड्रग कंट्रोल फॉर ट्रस्ट रिपोर्ट इन गंभीर केस. कपल हेल्ड विथ हीरोइन विथ सही रहा. तो यहाँ पे क्या फ्री कोवैक्सीन स्लॉट अवेलेबल, गेटिंग ए सेकंड डोज टेस्ट. यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा. इंटरव्यू एग्रेसिव नेचर ऑफ पेंडेमिक, सेकंड वेव हैंडल इफेक्टिवली, सेकंड वेव को इफेक्टिवली हैंडल करने का. और आ जाइए आप. बिहार एक्सटेंड लॉकडाउन टिल 8 जून. 8 जून तक बिहार जो है एक्सटेंड कर दिया अपना लॉकडाउन को. हाई कोर्ट डिक्लाइन प्ली फॉर मोर टाइम फॉर लक्षद्वीप. हाई कोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर दिया लक्षद्वीप को लेकर, क्योंकि ऑब्जेक्शन और इन्होंने जो पिटीशन फाइल किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को उसको रिजेक्ट कर दिया, और ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दिया कोई कुछ इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए. इन्होंने सीधा ये रिजेक्ट कर दिया. ये इंडिंग इंक्रिप्शन हो गया. इंडिंग इंक्रिप्शन का क्या हो गया, वो जो यूज़र की प्राइवेसी वायलेशन का सवाल है. तो व्हाट्सएप जो है हाई कोर्ट में कहा कि अगर
इन टू इन इंक्रिप्शन करें, मतलब एक एक आदमी से दूसरे आदमी के पास मैसेज किया, अगर वो हम उसको चेक करेंगे कि वो उसका ऑरिजिनेटर कौन है किसके पास, तो वो राइट टू प्राइवेसी का भी ब्रेक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कुड्डू स्वामी केस में भी राइट टू प्राइवेसी का ब्रेक हुआ, अगर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे, तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी पे भी मतलब एक्शन लिया जा सकता है, और उस पर भी ब्रेक लगाए, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री है कुछ भी भेजने के लिए, आप देश की इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता, संप्रभुता अगर का सवाल अगर रहेगा जहाँ पे, तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी पे भी इंटरफेयर कर सकते हैं। और वही इसी को लेके, तो इसको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका एक्ट जो आईटी एक्ट 2000 जो है उसको क्या लीगल करने का अलाउ करता या नहीं करता, इसलिए इसी चीज़ पे सब चर्चा हुई। नो कमेंट क्या है, ये नोमी ओसाका, इन्होंने ये टेनिस प्लेयर हैं जापान के, जो आफ्टर मैच के बाद इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना था मीडिया को, बट इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इनसेंसिटिव है ये, हम इसको नहीं देंगे। तो ये वहाँ पे रूल है कि आप को देना कंपलसरी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बट उन्होंने इसका विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया कि हम इसको करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए। बट वहाँ पे ये रूल है कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपको 14,000 तक आपको फाइन लगाया जा सकता है, इस तरीके की है। तो इंडिया में भी देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो लिया था, वो इन्होंने संन्यास लिया था, तो इन्होंने कुछ बताया नहीं था पहले, कुछ मीडिया को नहीं बताया, इन्होंने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे बताया था कि हम संन्यास लिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और द इंडियन मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस, ये फ़िलिस्तीन और इसराइल के बारे में है कि इसराइल और फ़िलिस्तीन का मसला क्या है, इंडिया से क्या सीखना चाहिए। तो ये जो है वहाँ पे एक होली लैंड है जहाँ आप पे अब्रानिक मोनोथेइज्म, मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। वन कांट बी जीव और क्रिश्चियन और अ मुस्लिम एंड डिनाई दैट इट इज़ द प्रोमिस्ड लैंड ऑफ बेनी इज़राइल ब्रांच ऑफ अब्राहम, द अलाक्सा मॉस्क। मुस्लिम और क्रिश्चियन वो भी डिनाई नहीं करते हैं कि जेविस का कुछ यहाँ पे नहीं है, वो भी मानते हैं कि कुछ ना कुछ होंगे प्रीवियस एंशियंट टाइम के। बट द अलाक्सा उनका इन द कुरान, होली कुरान में इसको सोलोमन टेम्पल कहा गया, विच इज़ द फर्स्ट किबला ऑफ इस्लाम फॉर मुस्लिम। द इस्लामिक क्लाइम ऑन जेरूसलम कम ओनली थ्रू इट्स एसोसिएशन विथ जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। इस पर पूरी डिस्कस हुई है, लंबी बात हुई है। नकबा क्या, अरबिक वर्ड विच मीन्स होलोकॉस्ट। Israel destroyed about 600 Palestine villages and expelled about 80% of Arab from its territory। और इन 1967 में जो वार हुआ था उसके में इसराइल ने ना बल्कि जीता, बल्कि उन्होंने फिलिस्तीनियन के लैंड पे कब्जा किया। और यहाँ तक कि इजिप्ट, सिनाई पेंसुला और सीरिया गैलोन हाइट तक को इन्होंने कब्जा किया। इनकी डिमांड है कि 2 स्टेट क्या सोल्यूशन है, तो 2 स्टेट पे सोल्यूशन मानना है OIC का कि एक ही शर्त पे कि ताकि 1967 के आधार पे फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया जाए और जो भी कैप्चर किया इसराइल उसको रिटर्न किया जाए। ये इसी पे भी पूरी डिटेल डिस्कस आप पढ़ लीजिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसेंशियल ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा प्रोजेक्ट इसेंशियल ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए वो इसेंशियल है। इसके में एक पिटीशन दायर हुआ था, तो सेंट्रल विस्टा ने कहा हाई कोर्ट में कि उस पिटीशन को खारिज किया जाए। बट जो PIL फाइल किया गया था उसी को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट डिसमिस PIL प्ली अगेंस्ट वर्कर से कोविड-19 प्रोटोकॉल और 882।
जूही चावला मूव हाई कोर्ट ऑन 5G टेक्नोलॉजी। जूही चावला पर ने एक पिटीशन दायर किया और उन्होंने कहा कि आप पे जो है अगर इसको दे रहे हैं तो इसको पहले चेक किया जाए क्या इसको नुकसान नहीं है हेल्थ और लाइफ और ऑर्गन और लिम्ब एडल्ट चाइल्ड फ्लोरा एंड फूना बिफोर इट्स ऑफिशियल रोल आउट इन द कंट्री। ऑफिशियल रोल आउट करने के पहले जो है आपको पहले ये डिक्लेयर करना चाहिए कि इसका क्या नुकसान है या नहीं है। इन्होंने ये भी बोला कि इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है गवर्नमेंट एंड द साइंस ऑफ द एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ACR इन पार्टिकुलर टू certified that the deployment of 5G technology for cellular communication posed no reasonable risk on hazard to the health of citizen। इस तरह की बात है ट्विटर हैज़ टू कंप्लाई विथ IT रूल हाई कोर्ट। इन्होंने ये हाई कोर्ट क्या कहा ट्विटर को कि आपको जो रूल है उसको मानना ही पड़ेगा, जो रूल रेगुलेशन को आप फॉलो करना ही पड़ेगा। जो नया रूल जो आया इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल इथिक कोड रूल्स 21 आपको इसको मानना ही पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर नोटिफाई 108 नेगेटिव इम्पोर्ट। इन्होंने कुछ पार्ट्स है जो इन्होंने बोला कि हम इसको खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, इसको इंपोर्ट अब नहीं करेंगे, बाहर से हम नहीं मंगाएंगे। उस लिस्ट में जो है वो ये है, आपको बता रहे हैं क्या क्या है। जैसे पॉजिटिव लिस्ट कंप्राइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम सेंसर सिमुलेटर वेपन लाइक हेलीकॉप्टर नेक्स्ट जनरेशन कार्वेटर कोरवेट्स एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम टैंक इंजन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर सिस्टम एंड मेनी मोर सच आइटम it stated। The second list has been prepared after several rounds of consultation with government and private manufacturing industry। इन्होंने कहा कि इस तरीके का जो है वो उसको हम खुद से तैयार करेंगे और परचेस नहीं करेंगे, इसको डोमेस्टिक लेवल पर हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। छोटे छोटे जो MSME जो हैं स्टार्टअप हैं एल्सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसको हम बढ़ाएंगे। यही सब बात हुई है। जस्टिस मिश्रा लाइकली टू हेड NHRC। तो जस्टिस मिश्रा जो है इसके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये हेड बन सकते हैं। इस पर भी डिस्कस चल रहा। 5 ट्रैप्ड इन मेघालय कोल माइन आफ्टर डायनामाइट ब्लास्ट में मेघालय में 5 लोग माइन के अंदर चले गए हैं। ईयर इन डेडलाइन फॉर फुल वैक्सीनेशन टाइट पॉलिसी शुड बी क्लियर फ्लैक्सीबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी जो भी बना रही है सरकार वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, फ्लैक्सीबल होनी चाहिए, लोगों के सहूलियत के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा रिजिड हो। एज बर्थ डिक्लाइन चाइना टू अलाउ कपल टू हैव थर्ड चाइल्ड। चाइना का जो है वो चाइना के एक बहुत बड़ी आबादी जो बूढ़ी हो गई थी उसके बाद इन्होंने 2 चाइल्ड का किया, फिर उसके बाद जो ये आबादी 3 चाइल्ड की पॉलिसी को लागू कर दिया ताकि तो वहाँ की आबादी बढ़े। वहाँ की आबादी बहुत जो है वो ओल्ड हो गई है। इस टॉपिक पे भी बात हुई है और वो बट वहाँ के जो प्रॉपरली जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, नहीं चाहते ज़्यादा बच्चे, वो चाहते कि 1 ही 2 सही है। बहुत सी रीज़न है, इनकम का, सऊदी टॉक अंडरवे इन गुड एटमॉस्फेयर। ईरान और सऊदी से 2016 से इन्होंने अभी बातचीत चल रही है। अगर दोनों में आपसी सहमति में अगर हो जाता है डिप्लोमेटिक पास तो एम टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इनका टारगेट है जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उस वहाँ तक हम पहुँचें और दोनों मिलकर काम करें
अगर ऐसा होता तो दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है बहुत जगह पे वो ख़त्म हो सकता है, दोनों डेवलप कर सकते हैं। ये 1000 ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट एक्ट भाषण